Hello dear, in this video we will learn about computer hardware and its component. Let's start from the definition of hardware, that is physical component of computer is called hardware, or we can also say electronic and mechanical equipments of computer is called hardware. On the screen we can see different common computer hardware components like monitor, speaker, printer, scanner, keyboard, microphone, mouse, digital camera, modem, speaker, and system unit. On the basis of functions of these components, we can filter some images as input device from the previous image. These are keyboard, microphone, digital camera, mouse, and scanner. So we can define input device, which is the first component of hardware, as hardware used to enter data and instructions is called input device. There are many input devices like keyboard, mouse, scanner, light pen, barcode reader, microphone, touch screen, and joystick. The second component of hardware can be output device, which is used to convey information to the user from the hardware. We can define it as hardware that conveys information to a user is called output device. This is the second component of hardware. The examples of output hardware devices are monitor, printer, and speakers. The other component of hardware is CPU, which is also called Central Processing Unit, which is also called processor, that carries out instruction that tell computer what to do. We can divide CPU, Central Processing Unit, in two main parts. Number one, control unit, and number two, ALU unit, arithmetic logical unit. Control unit manages instructions, processing, and coordinates data flow within the CPU and between other computer components. It has an instruction decoder component that interprets the instructions fetched from memory and converts it into micro operations that the CPU can run. The control unit directs other CPU components to perform required operations. कंट्रोल यूनिट बेसिकली बाहर से आने वाली जो अदर डिवाइसेस से आने वाली इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स या सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करता है और उसको ट्रांसलेट करता है उन इंस्ट्रक्शंस में जिनको सीपीयू अंडरस्टैंड कर सकता है और फर्दर बाकी कंपोनेंट्स तक पहुंचाता है ताकि जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस है वो कंप्यूटर से या बाकी दूसरे कंपोनेंट्स के ज़रिए कंप्लीट किया जा सके। इसी तरह
एएल यूनिट जो है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसा कि नाम से आइडिया हो रहा है, इसमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो हम कह सकते हैं द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, subtraction, multiplication and division, and logical operations like and, or, and not, yes, no, true, false operations on data. It receives data from registers within the CPU. CPU का एक पार्ट होता है रजिस्टर, जो कि स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज लोकेशन होती है विद इन सीपीयू। वहाँ से आपके पास इंस्ट्रक्शंस जाती हैं सीपीयू के। दूसरा पार्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और वहाँ पे फिर वो इंस्ट्रक्शन अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड होंगी तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर कोई लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड होगी तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसी तरह हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो है मेमोरी, टेम्परेरी होल्डिंग प्लेस फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जब भी कंप्यूटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है तो एप्लीकेशंस जो उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही होती हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी पर टेम्परेरी अपलोड करता है ताकि वो एक्शन परफॉर्म हो सके, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसको हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह दूसरा एक और पार्ट है हमारे पास जो कि रोम है, रीड ओनली मेमोरी। Basically, RAM is a memory that stores the data that you are currently working with. RAM में वो डाटा अपलोड या स्टोर होता है, वो इंस्ट्रक्शन अपलोड या स्टोर होती है जिस पर आप करंटली आपकी कंप्यूटर या आपके कंप्यूटर की एप्लीकेशंस काम कोई एक्शन परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन रैम जो है वोलेटाइल है, मीनिंग दैट एज सुन एज इट लॉसेस पावर, लाइक जब भी आपका कंप्यूटर ऑफ होगा या आपकी वो एप्लीकेशन क्लोज करेगी की जाएगी जो वो करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, दैट डाटा डिसपियर्स, वो डाटा गायब हो जाता है, उस तक एक्सेस खत्म हो जाती है। रोम जो है दैट रेफर्स टू परमानेंट मेमोरी, इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि इसमें मौजूद डाटा या इंस्ट्रक्शन डिलीट नहीं होती पावर ऑफ होने पर या किसी एप्लीकेशन के क्लोज होने पर, वो डिलीट नहीं होती। द डाटा रिमेन्स रहता है, उसमें जो लिखा होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस मेमोरी में वो मौजूद रहती है। लेकिन रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे डाटा या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड किया जाता है, और जब वो काम वो ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है वो डाटा वो इंस्ट्रक्शन इरेज हो जाती हैं या उन तक हमारी एक्सेस ख़त्म हो जाती है। अब तक हमने 4 कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर देख लिए। नंबर 1 हमने देखा या समझा वो है इनपुट डिवाइस, नंबर 2 आउटपुट डिवाइस, नंबर 3 सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का, जो कि कंट्रोल करता है तमाम ऑपरेशंस जो कि कंप्यूटर पे परफॉर्म हो रहे होते हैं, और फोर्थ था हमारा मेमोरी विच इज़ टेम्पररी होल्डिंग प्लेस फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू विच वी आर करंटली वर्किंग, वो हमारे पास मेमोरी कहलाती है। फिफ्थ जो पार्ट है
वो है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस which holds data, instructions and information for future use. वो स्पेस, वो मेमोरी जहाँ पर आप परमानेंट अपनी रिजल्ट को, अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ताकि आप इन फ्यूचर उसको यूज़ कर सकें, वो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। उसमें उसकी एग्जांपल हमारे पास हार्ड डिस्क है, हमारे पास सीडी है, इस तरह की बहुत सारी मेमोरी कार्ड्स हैं, यूएसबी है, वो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं विच कैन होल्ड डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। मींस कंप्यूटर के ऑपरेशंस के जो रिजल्ट्स हैं जिनको कि आप एज इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूजेज के लिए अपने पास स्टोर करना चाहते हैं, वो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होते हैं, विच इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ हार्डवेयर। तो हमने जो मेन कंपोनेंट्स हार्डवेयर के हैं उनको हमने यहाँ पे कुछ डिस्कस किया। उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हुआ होगा इन 5 कंपोनेंट्स के ज़रिए कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरह से कंट्रोल या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए, वो पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम एक नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।